Chapter 3. The Sultans of Delhi. The Sultans of Delhi, who ruled between 1206 से 1526 AD, left an indelible mark on the pages of Indian history. For more than 300 years, 5 dynasties ruled the country. These dynasties were the Slave Kings, 1206 से 1290 AD, the Khaljis, 1290 से 1320 AD, the Tughlaqs, 1320 से 1414 AD, the Saids, 1414 से 1451 AD, and the Lodis, 1451 से 1526 AD. दिल्ली के सुल्तान, जिन्होंने 1206 से 1526 ईस्वी तक भारत पर शासन किया, भारतीय इतिहास के पन्नों पर एक अमिट छाप छोड़ गए। 300 साल से भी अधिक समय तक 5 राजवंशों ने देश पर शासन किया। ये राजवंश थे गुलाम वंश, 1206 से 1290 ईस्वी, खलजी, 1290 से 1320 ईस्वी, ट्यूगलक्स, 1320 से 1414 ईस्वी, सेड्स, 1414 से 1451 ईस्वी, और लोडीज, 1451 से 1526 ईस्वी. Delhi, a seat of power. Delhi served several empires as a capital. The Tomaras made the city of Dhillika, Delhi, in 736 AD. Later, the Chauhans, after defeating the Tomaras, founded their rule in Delhi. By this time, Delhi had become an important commercial center. Coins, Dehliwal, started to be minted. Many Jana merchants settled in Delhi. With the establishment of Sultanate rule, Delhi became a seat of power. Delhi now transformed into a capital which controlled vast areas of the subcontinent. दिल्ली ने कई साम्राज्यों को अपनी राजधानी के रूप में सेवा दी। टोमराज ने 736 AD में दिल्ली, धिल्लिका, शहर को स्थापित किया। बाद में चौहान्स ने टोमराज को हराकर दिल्ली में अपने शासन की शुरुआत की। इस समय तक दिल्ली एक महत्वपूर्ण कमर्शियल सेंटर बन चुका था। कॉइन्स, दहलीवाल, बनना शुरू हो गए थे और कई जिना मर्चेंट्स दिल्ली में बस गए थे। सुल्तानेट रूल की स्थापना के बाद दिल्ली एक शक्ति केंद्र बन गया। अब दिल्ली एक ऐसी कैपिटल बन गई जो पूरे सबकॉन्टिनेंट के विशाल हिस्से को कंट्रोल करती थी। In 1206, Delhi became the capital of the Delhi Sultanate. Many dynasties expanded and built forts and townships in and around the city of Delhi. 1206 में दिल्ली दिल्ली सुल्तानत की राजधानी बन गई। कई राजवंशों ने दिल्ली और उसके आसपास किलों और नगरों का निर्माण किया और विस्तार किया। द मामलुक और स्लेव डायनेस्टी 1206 से 1290 AD. Muhammad Ghori was assassinated in 1206 AD. His newly conquered dominion suffered due to his sudden death. After his death, Muhammad Ghori's Indian possessions came under the rule of his general, Qutubuddin Aibak, with whose reign began the slave dynasty. मोहम्मद गोरी की हत्या 1206 में हुई थी। उनकी अचानक मृत्यु ने उनके द्वारा जीते गए साम्राज्य को प्रभावित किया। उनकी मृत्यु के बाद मोहम्मद गोरी की भारतीय संपत्तियों का नियंत्रण उनके जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में आ गया और इसी के साथ गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 AD।
Qutbuddin Aibak ruled India only for 4 years. He had been sold as slave in his childhood, and after passing through a few hands, was finally bought by Sultan Muhammad Ghori. कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 एडी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में केवल 4 वर्षों तक शासन किया। वह बचपन में एक दास स्लेव के रूप में बेचे गए थे और कुछ हाथों से होते हुए वह सुल्तान मोहम्मद गोरी द्वारा खरीदे गए थे। Muhammad Ghori soon recognized his efficiency and gave him an important post. Qutbuddin Aibak is known as the founder of the slave dynasty or Mamluk dynasty. Mamluk means slave who was born of free parents. They were called slave rulers because 3 sultans, Qutbuddin, Iltutmish and Balbanvere themselves were slaves. मोहम्मद गोरी ने ऐबक की क्षमता को पहचाना और उन्हें एक महत्वपूर्ण पद दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी या मामलुक वंश का संस्थापक माना जाता है। मामलुक का अर्थ है एक दास, स्लेव, जो स्वतंत्र माता पिता से जन्मा हो। उन्हें स्लेव रूलर्स कहा जाता है क्योंकि 3 सुल्तान, कुतुबुद्दीन, इल्तुतमिश और बलबन, वे सभी कभी दास, स्लेव थे। After Ghori's death, Aibak set up a free kingdom with its headquarters in Lahore. He thus laid the foundations of the Delhi Sultanate. गोरी की मृत्यु के बाद ऐबक ने लाहौर में अपनी राजधानी के साथ एक स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित किया और इस तरह उन्होंने दिल्ली सुल्तानत, Delhi Sultanate, की नींव रखी। Aibak was the first free sultanate ruler in India. He was very kind. His habit of distributing large sums of money in charity gained him the title of Lakbaksh, i.e., the giver of lakhs. He built 2 great mosques, one at Delhi called the Quwwatul Islam, Power of Islam, and another at Ajmer called अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। ऐबक भारत के पहले स्वतंत्र सुल्तान, फर्स्ट फ्री सुल्तान थे। वह बहुत दयालु थे और दान, चैरिटी देने की उनकी आदत ने उन्हें लाख बख्श का उपनाम दिलाया, जिसका अर्थ है लाखों का दाता। उन्होंने दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में अढ़ाई दिन का झोंपड़ा मस्जिद का निर्माण किया। He made no fresh victories because he was busy with consolidating his rule in the conquered territories. He did not even try to establish healthy system of administration. He followed military rule. He also started the construction of the famous Qutub Minar at Delhi, but most of the work was finished by Iltutmish. उन्होंने नई विजय प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया क्योंकि वह पहले ही अपने शासन, रूल को मजबूत करने में व्यस्त थे। ऐबक ने प्रशासन की व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को सुधारने का कोई प्रयास नहीं किया, बल्कि उन्होंने सैन्य शासन, मिलिट्री रूल अपनाया। उन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया, लेकिन इसका अधिकांश काम इल्तुतमिश ने पूरा किया। राजपूत डायनेस्टीज। After the death of Harsha, northern India broke up into small regional kingdoms. In the period 647 to 1192 AD, a number of kingdoms came into existence and were ruled by the Rajputs. हर्ष के निधन के बाद उत्तरी भारत छोटे-छोटे क्षेत्रीय राज्यों में बंट गया था। 647 से 1192 ईस्वी के बीच कई राज्य अस्तित्व में आए और इन्हें राजपूतों ने शासित किया। राजपूत वंशों का समय। टोमरा, अर्ली 12th सेंचुरी 1165। अनंगपाल 1130 से 1145,
चौहान 1165 से 1192, पृथ्वीराज चौहान 1175 से 1192, प्रारंभिक तुर्की शासक अर्ली टर्किश रूलर्स 1206 से 1290, पहले गुलाम सुल्तान दी अर्ली स्लेव सुल्तान्स, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210, शमसुद्दीन ऐबक 1210 से 1236, रजिया सुल्तान 1236 से 1240, गियासुद्दीन बलबन 1266 से 1287, खलजी वंश खलजी डायनेस्टी 1290 से 1320, जलालुद्दीन खलजी 1290 से 1296, अलाउद्दीन खलजी 1296 से 1316, मुबारक खलजी 1316 से 1320, तुगलक वंश तुगलक डायनेस्टी 1320 से 1414, गियासुद्दीन तुगलक 1320 से 1324, मोहम्मद तुगलक 1324 से 1351, फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388, बाद के तुगलक शासक लेटर ट्यूगलक्स 1388 से 1414, सैयद वंश सैयद डायनेस्टी 1414 से 1451, खिज्र खान 1414 से 1421, मुबारक शाह 1421 से 1434, मोहम्मद शाह 1434 से 1443, आलम शाह 1443 से 1451, लोदी वंश लोडी डायनेस्टी 1451 से 1526, बहलुल लोदी 1451 से 1489, सिकंदर लोदी 1489 से 1517, इब्राहिम लोदी 1517 से 1526, वन डे इन 1210 AD, while playing polo, कुतुबुद्दीन fell off his horse and died. 1210 ईस्वी में एक दिन पोलो खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़े से गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश 1210 से 1236 AD. Qutbuddin was succeeded by Iltutmish. Shamsuddin Iltutmish was born of Turkish parents who belonged to the Ilbari tribe of Central Asia. After the death of Qutbuddin, the nobles of Delhi invited Iltutmish, the governor of Badayu, to come to Delhi. Iltutmish reached Delhi and assumed sovereign powers. He made Delhi as his capital. He devoted the first 10 years of his rule in consolidating his seat of power. Iltutmish had to face serious troubles from his rival Turkish nobles who had been very influential in political and military affairs. कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश को दिल्ली का शासक बनाया गया। इल्तुतमिश का जन्म तुर्की माता पिता से हुआ था, जो केंद्रीय एशिया के इल्बारी कबीले से थे। आफ्टर द डेथ ऑफ कुतुबुद्दीन, दिल्ली के नवाबों ने इल्तुतमिश को बुलाया और उन्हें अपनी राजधानी बनाने का निमंत्रण दिया। इल्तुतमिश ने दिल्ली पहुंचकर सॉवरेन पावर, संप्रभु सत्ता, को ग्रहण किया। उन्होंने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और पहले 10 वर्षों में अपने शासन को मजबूत किया। Iltutmish and the Mongols. During Iltutmish's reign, the Mongols appeared on the borders of India for the first time. These fierce and warlike people, under the leadership of Chengiz Khan,
overran northwestern territories and reached the banks of the Indus. Some enemies of the Mongols sought shelter with Iltutmish, but he refused. He thus saved his kingdom from the Mongols' fury and imminent devastation. इल्तुतमिश के शासन में मंगोल पहली बार भारत की सीमा पर दिखाई दिए। ये लोग फियर्स एंड वॉलाइक, क्रूर और युद्धप्रिय थे और अंडर द लीडरशिप ऑफ चेंगिज खान इन लोगों ने उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। मंगोलों के शत्रु इल्तुतमिश के पास शरण लेने आए, लेकिन इल्तुतमिश ने शरण देने से मना कर दिया, जिससे उन्होंने अपने साम्राज्य को मंगोलों के खतरे से बचा लिया। Iltutmish's buildings. Iltutmish was a great lover of buildings. He completed the construction of the Qutub Minar in Delhi, which was started by Qutubuddin Aibak. He also built a magnificent mosque at Badayu and his own mausoleum in red sandstone at Delhi. इल्तुतमिश को इमारतों का बहुत शौक था। उन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया, जो पहले कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया था। इसके अलावा उन्होंने बदायूं में एक शानदार मॉस्क और दिल्ली में अपनी मौज़ोलियम का निर्माण किया, जो लाल बलुआ पत्थर से बना था। रजिया सुल्ताना 1236 से 40 AD. Before his death, Iltutmish had nominated his daughter Rajia as his heir. However, some Turkish nobles were not ready to accept a woman as their sultan. The nobles accused her of showing undue favors to an Abyssinian noble, Jalaluddin Yaqut. All these factors provoked the nobles to revolt. अपने निधन से पहले इल्तुतमिश ने अपनी बेटी रजिया को हेir के रूप में नामित किया था, लेकिन कुछ तुर्की नवाब से एक महिला को सुल्तान के तौर पर स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। उनके खिलाफ आरोप लगाए गए कि उन्होंने एक अबिसिनियन नोबल जलालुद्दीन याकुत को ज्यादा महत्व दिया था। इन सभी कारणों ने नवाब्स को विद्रोह करने के लिए उकसाया। नासिरुद्दीन महमूद 1246 से 1266 AD. After Rajia Sultana's death, there was political chaos and confusion in the country. Two rulers, Bahram and Masood, were enthroned. They proved to be worthless, and eventually Nasiruddin Mahmud, the younger son of Iltutmish, was raised to the throne. One of his nobles, Ghayasuddin Balban, became the prime minister. Balban was the most powerful in the state. रज़िया सुल्तान के बाद देश में राजनीतिक अराजकता और कंफ्यूजन फैल गई। दो शासक, बहराम और मसूद, सिंहासन पर बैठे, लेकिन दोनों इनफेक्टिव साबित हुए। अंततः नासिरुद्दीन महमूद, जो इल्तुतमिश के छोटे बेटे थे, को सिंहासन पर बिठाया गया। उनके एक नवाब, गायासुद्दीन बलबन, प्रधानमंत्री बने और राज्य में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गए। घियासुद्दीन बलबन 1266 से 1286 AD. After the death of Nasiruddin Mahmud in 1266, Balban became the undisputed Sultan of Delhi after a hard struggle against his enemies. He ruled the country for 20 years from 1266 से 86. 1266 में नासिरुद्दीन महमूद की मौत के बाद बलबन ने दिल्ली के सुल्तान के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की। उन्होंने 1266 से 1286 तक 20 साल तक शासन किया। Balban made the Sultan's position supreme. He introduced the Persian custom of Sizda and Pebos, or kneeling and kissing the Sultan's feet. The Orthodox Muslims opposed this as they believed that one could bow only before God.
बलबन ने सुल्तान की स्थिति को सर्वोच्च बना दिया। उन्होंने पर्शियन कस्टम्स जैसे सिजदा और पेबोस को लागू किया, जिसका मतलब था सुल्तान के सामने झुकना और उनके पैरों को चूमना। इस पर ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स ने विरोध किया क्योंकि उनका मानना था कि केवल गॉड के सामने झुका जा सकता है। Balban had to face several hardships as a prime minister and as a sultan. His own Turkish nobles, called the 40, plotted various conspiracies against him. The Rajput chiefs also had not been completely subdued. The Mongol invasions too had become great danger to the security of the empire. But Balban faced all of them boldly. बलबन को प्रधानमंत्री और सुल्तान दोनों के रूप में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनके अपने तुर्की नवाब्स, जिन्हें दी 40 कहा जाता था, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचते थे। राजपूत चीफ्स भी पूरी तरह से अधीन नहीं हुए थे। इसके अलावा मंगोल आक्रमण भी साम्राज्य की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन चुके थे। लेकिन बलबन ने इन सभी समस्याओं का साहसिक तरीके से सामना किया। द खलजी सुल्तान्स। जलालुद्दीन खलजी 1290 से 1296 एडी। Jalaluddin Khalji occupied the seat of power after murdering Kakubad, the last ruler of the slave dynasty. The Turkish nobles found it hard to accept Khalji as the Sultan of the kingdom. But Jalaluddin proved to be too strong for them. He had another achievement to his credit. He had repulsed terrible invasion of the Mongols in 1291. Jalaluddin was treacherously murdered by his nephew Alauddin Khalji. जलालुद्दीन खलजी ने स्लेव डायनेस्टी के अंतिम शासक कैकुबाद की हत्या के बाद सत्ता संभाली। तुर्की नवाब्स को खलजी को सुल्तान के तौर पर स्वीकार करने में मुश्किल हो रही थी, लेकिन जलालुद्दीन ने अपनी ताकत से उन्हें सबक सिखाया। एक और बड़ी उपलब्धि उनके नाम पर थी, जब उन्होंने 1291 में मंगोलों के आक्रमण को नाकाम किया। अंततः उन्हें उनके भतीजे आलौद्दीन खलजी ने धोखे से मार डाला। आलौद्दीन खलजी 1296 से 1320 एडी। Alauddin was enthroned in 1296 AD. He could not feel secure unless he had subdued his rivals. He sent a force of 40,000 soldiers under Ulugh Khan and Zafar Khan to attack Multan and capture Arkali Khan and Ibrahim, the two sons of Jalaluddin. The princes were defeated and imprisoned at Hansi. They were blinded and later murdered. In order to win over the nobles, he distributed the booty among them which he had received from his Devgiri campaign. आलौद्दीन ने 1296 में सुल्तान के तौर पर ताज पहन लिया। वह तब तक सुरक्षित महसूस नहीं करते थे जब तक उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वियों को नष्ट नहीं किया। उन्होंने उलुग खान और जाफर खान के नेतृत्व में 40,000 सैनिकों की एक सेना भेजी ताकि मुल्तन पर हमला कर अरकली खान और इब्राहिम, जो जलालुद्दीन के दो बेटे थे, को कैद किया जा सके। उन राजकुमारों को हराया गया और हंसी में उन्हें अंधा कर दिया गया और बाद में मारा गया। अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए आलौद्दीन ने देवगिरी कैंपेन से जो लूट ली थी, उसे अपने नवाब्स में बांट दिया। Alauddin's victories. Alauddin had a faith that consolidation, expansion and defense could all go together. He wanted to become a world conqueror and call himself the second Alexander, Sikandarai Sani. He adopted the policy of expansion.
Alauddin first planned to establish his rule over the whole of India. His victories may be analyzed under two headings. First, conquests of northern India and second, conquests of Deccan. अलाउद्दीन का विश्वास था कि कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन और डिफेंस सभी एक साथ चल सकते हैं। वह दुनिया का सबसे बड़ा विजेता बनना चाहते थे और खुद को सेकंड अलेक्जेंडर, सिकंदराइसानी कहकर बुलाया। उन्होंने एक्सपेंशन पॉलिसी को अपनाया और सबसे पहले पूरे भारत पर अपना शासन स्थापित करने का लक्ष्य रखा। उनकी जीत को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला, नॉर्दर्न इंडिया की विजय और दूसरा, डेक्कन की विजय। द कॉन्क्वेस्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1297 से 1305 एडी अलाउद्दीन कॉन्कर्ड दी फॉलोइंग स्टेट्स इन नॉर्दर्न इंडिया। 1297 से 1305 एडी के दौरान अलाउद्दीन ने उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों पर विजय प्राप्त की। कॉन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात 1299 एडी। Alauddin's general, Nusrat Khan, invaded Gujarat and looted the prosperous port of Cambay. There he purchased a Hindu slave named Malik Kafur for 1000 dinars. Malik Kafur embraced Islam and later extended the Khalji Empire to the whole of South India. अलाउद्दीन के जनरल नुसरत खान ने गुजरात पर आक्रमण किया और कंबे के समृद्ध बंदरगाह को लूट लिया। यहाँ उन्होंने एक हिंदू गुलाम, मलिक काफूर, को 1000 दीनार्स में खरीदा। बाद में मलिक काफूर ने इस्लाम स्वीकार किया और बाद में खलजी एम्पायर का विस्तार साउथ इंडिया तक किया। कॉन्क्वेस्ट ऑफ रणथंभौर 1301 एडी। In 1301, Alauddin's generals Ulugh Khan and Nusrat Khan laid a siege to the fort. Nusrat Khan, along with many Muslim soldiers, was killed in the battle. Ultimately, Alauddin himself took over the command of the army and attacked Ranthambore. The Rajput chief put up a strong resistance but was finally defeated and put to death. 1301 में अलाउद्दीन के जनरलों उलुग खान और नुसरत खान ने रणथंभौर के किले की घेराबंदी की। इस लड़ाई में नुसरत खान सहित कई मुस्लिम सैनिक मारे गए। अंत में अलाउद्दीन ने खुद सेना की कमान संभाली और रणथंभौर पर हमला किया। राजपूत प्रमुख ने मजबूत प्रतिरोध दिखाया, लेकिन अंततः उसे हराया गया और मौत के घाट उतारा गया। कॉन्क्वेस्ट ऑफ चित्तौड़ 1303 एडी। Alauddin Khalji started for Mewar in 1303. Rana Ratan Singh and his soldiers fought to the last man. In 1305 AD, Alauddin conquered Malwa, the cities of Ujjain, Mandu and Chanderi. Thus, by 1305 AD, Alauddin had become the master of the whole of northern India. 1303 में अलाउद्दीन खलजी ने मेवार की ओर कूच किया। राणा रतन सिंह और उनके सैनिकों ने अंतिम दम तक लड़ाई लड़ी। 1305 में अलाउद्दीन ने मालवा के शहरों उज्जैन, मंदु और चंदेरी पर विजय प्राप्त की। इस प्रकार 1305 तक अलाउद्दीन ने उत्तर भारत के समग्र क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। द कॉन्क्वेस्ट्स ऑफ डेक्कन 1307 से 1317 एडी। कॉन्क्वेस्ट ऑफ देवगिरी 1307 एडी। In 1307, Alauddin Khalji sent an army under Malik Kafur against King Ramchandra of Devgiri. The king was defeated but Alauddin allowed him to rule as a vassal.
Devgiri now became the base for Alauddin's further campaigns in the 1307 में अलाउद्दीन खलजी ने मलिक काफूर की अगुवाई में एक सेना भेजी देवगिरी के राजा रामचंद्रा के खिलाफ। राजा हार गए, लेकिन अलाउद्दीन ने उन्हें एक वैसल के रूप में शासन करने की अनुमति दी। अब देवगिरी अलाउद्दीन के दक्षिण में और आक्रमणों के लिए आधार बन गया। कॉन्क्वेस्ट ऑफ वारंगल 1309 AD। Its ruler, Pratapruddra Deva, offered tough resistance but was defeated. He agreed to pay an annual tribute to the Khalji ruler. Malik Kafur returned to Delhi with an immense booty. वारंगल के शासक प्रतापरुद्र देवा ने कड़ी प्रतिरोध दिखाया, लेकिन उन्हें हराया गया। उन्होंने खलजी शासक को एक वार्षिक कर चुकाने की सहमति दी। मलिक काफूर दिल्ली लौटे और अपार लूट लेकर आए। कॉन्क्वेस्ट ऑफ द्वार समुद्र 1310 से 11 AD। राजा वीरा बल्लाला III submitted without resistance. Malik Kafur looted and plundered some of the famous temples and returned to Delhi with a large quantity of gold, silver, jewels, etc. राजा वीरा बल्लाला III ने बिना प्रतिरोध के आत्मसमर्पण कर दिया। मलिक काफूर ने कुछ प्रसिद्ध मंदिरों को लूटा और दिल्ली वापस लौटते समय ढेर सारी गोल्ड, सिल्वर, ज्वेल्स आदि की लूट ली। कॉन्क्वेस्ट ऑफ मलाबार। Malik Kafur marched to the Malabar coast, which was ruled by the Pandyas. After looting much wealth, he returned to Madurai. मलिक काफूर मलाबार कोस्ट की ओर बढ़े, जो पांड्यास द्वारा शासित था। बहुत सारा धन लूटने के बाद वह मदुराई लौट आए। कॉन्क्वेस्ट ऑफ मदुराई 1311 AD। The Pandya king, Veera Pandya, was defeated. Malik Kafur, with a large booty of horses and elephants, went to Rameshwaram. He built many mosques there and returned to Delhi. पांड्या के राजा वीरा पांड्या को हराया गया। मलिक काफूर भारी लूट के साथ हॉर्सेस और एलिफेंट्स लेकर रामेश्वरम गए, जहां उन्होंने कई मस्जिदें बनाई और फिर दिल्ली लौटे। सेकेंड कैंपेन टू देवगिरी 1312 AD। राजा शंकरादेवा, the son of Ramchandra, had stopped paying the promised tax to Alauddin Khalji. Malik Kafur again invaded Devgiri and killed Shankaradeva. This was the last Deccan campaign of Malik Kafur. He had brought the whole of South India under the rule of Alauddin Khalji. राजा शंकरादेवा, जो रामचंद्रा के पुत्र थे, ने अलाउद्दीन खलजी को वादा किया हुआ कर देना बंद कर दिया था। इसके परिणामस्वरूप मलिक काफूर ने फिर से देवगिरी पर आक्रमण किया और शंकरादेवा को मार डाला। यह मलिक काफूर का दक्षिण भारत का आखिरी अभियान था। इस अभियान के बाद उन्होंने दक्षिण भारत के पूरे क्षेत्र को अलाउद्दीन खलजी के शासन के तहत ला दिया। Alauddin and the Mongols. Alauddin took many steps to stop the invasions of the Mongols. He strengthened his army and made it more efficient. He got the forts repaired which lay on the route of the Mongols. He also got new castles built at important places. He placed his armies in the frontier provinces of Multan, Samana and Dipalpur to check the advancement of the Mongols. The Mongols were so well checked by Alauddin's counter steps that they did not dare invade India as long as he was alive. अलाउद्दीन ने मंगोलों के आक्रमण को रोकने के लिए कई कदम उठाए। उसने अपनी सेना को मजबूत किया और उसे अधिक सक्षम बनाया।
उसने उन किलों की मरम्मत करवाई जो मंगोलों के मार्ग पर थे। इसके अलावा उसने महत्वपूर्ण स्थानों पर नए किलों का निर्माण भी कराया। अलाउद्दीन ने अपनी सेनाओं को मुल्तान, सामाना और दीपालपुर जैसी सीमा प्रांतों में तैनात किया ताकि मंगोलों की प्रगति को रोका जा सके। अलाउद्दीन की इन कदमों से मंगोलों को इतनी अच्छी तरह से रोका गया कि वे उसकी जिंदगी में भारत पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं कर पाए। अलाउद्दीन खिलजी's administration. Administrative reforms. Alauddin was a strong administrator. In order to control internal revolts and to keep the nobles under his strict control, he introduced several measures. He prohibited the nobles from doing intermarriages so as to prevent them from making alliances against him. He prohibited them from holding social gatherings or drinking at parties. He knew that such parties gave the nobles opportunities to hatch conspiracies. He set up an efficient detective system. Spies called Khufia Navis listened to bazaar gossip and reported it to the king. This enabled Alauddin to watch the activities of the nobles. He extracted surplus money from the nobles by imposing heavy taxes on them. Alauddin kept a strong and well-equipped army to check external invasions and internal revolts. Alauddin एक मजबूत प्रशासक थे। आंतरिक विद्रोहों को नियंत्रित करने और नवाबों को अपनी सख्त निगरानी में रखने के लिए उन्होंने कई कदम उठाए। उन्होंने नवाबों को आपस में शादी करने से रोक दिया ताकि वे एक दूसरे के साथ गठबंधन करके उनके खिलाफ साजिश न कर सकें। इसके अलावा उन्होंने उन्हें सामाजिक सभाएं या पार्टियां आयोजित करने से भी मना किया, क्योंकि उन्हें पता था कि ऐसी पार्टियां नवाबों को साजिश करने का मौका देती थी। उन्होंने एक कुशल जासूसी तंत्र स्थापित किया। जासूसों को खुफिया नवीस कहा जाता था, जो बाजार की गपशप सुनते और उसे राजा तक पहुंचाते थे। इस तरह अलाउद्दीन को नवाबों की गतिविधियों पर नजर रखने में मदद मिली। उन्होंने नवाबों से अधिक पैसे निकालने के लिए उन पर भारी कर लगाया। अलाउद्दीन ने बाहरी आक्रमणों और आंतरिक विद्रोहों को नियंत्रित करने के लिए एक मजबूत और अच्छी तरह से सुसज्जित सेना भी रखी। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। Alauddin was the first Sultan of Delhi who took keen interest in the fiscal and economic reforms. He needed money to maintain a large army to fight against the Mongols and for the suppression of internal revolts. So he introduced the following economic and financial reforms to increase his income. अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के पहले सुल्तान थे जिन्होंने फाइनेंशियल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर ध्यान दिया। उन्होंने एक बड़ी आर्मी बनाए रखने के लिए और मंगोलों से लड़ा जाने वाले युद्ध के लिए पैसों की जरूरत महसूस की। इसलिए उन्होंने अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए कई सुधार लागू किए। रेगुलेशन ऑफ प्राइसेस। He issued regulations to control the prices of all items of daily use such as wheat, barley, rice, cloth, sugar, ghee, etc. He introduced standard weights and measures all over the country. The traders who used false weights and measures to cheat people were severely punished. उन्होंने डेली यूज आइटम्स की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए नियम बनाए, जैसे गेहूं, चावल, कपड़ा, चीनी, घी आदि। साथ ही उन्होंने देश भर में स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स को लागू किया, जिससे व्यापारी चीटिंग नहीं कर सकें। जो व्यापारी झूठे वेट्स का इस्तेमाल करते थे, उन्हें कड़ी सजा दी जाती थी। कंट्रोल ओवर सप्लाईज।
All the local producers within 100 mil of Delhi were asked to keep only 10 mounds of grain with them and sell the surplus to the government. Large granaries were built to store grains. The food grains were supplied to the people at very low rates in times of hardship. Nobody dared to sell the goods at the rate higher than that fixed by the administration. दिल्ली के आसपास के 100 मील के इलाके के सभी उत्पादकों को आदेश दिया कि वे सिर्फ 10 मण अनाज अपने पास रखें और बाकी को गवर्नमेंट को बेच दें। उन्होंने बड़े ग्रैनरीज बनवाए जहां अनाज को सुरक्षित रखा जाता था। जब भी मुश्किल समय आता तो लोगों को बहुत सस्ते दामों पर अनाज मिलता था। कोई भी व्यापारी तय कीमत से ज्यादा पर अनाज नहीं बेच सकता था। इस प्रकार इन सुधारों ने अलाउद्दीन के शासन में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाई और उनके साम्राज्य को एक मजबूत आधार दिया। कंट्रोल ओवर मार्केट्स। Alauddin deputed high officials called Shehnai Mandi, superintendents of the market, to control the market's prices and enforce market regulations. अलाउद्दीन ने मार्केट प्राइसेस को नियंत्रित करने और मार्केट रेगुलेशंस को लागू करने के लिए उच्च अधिकारियों को नियुक्त किया, जिन्हें शहनाई मंडी, सुपरिंटेंडेंट्स ऑफ द मार्केट, कहा जाता था। इन अधिकारियों का काम था कि वे बाजार में प्राइस कंट्रोल करें और किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकें। Rationing system in times of scarcity. Alauddin introduced the system of rationing whenever droughts or famines occurred in any area of his realm. अलाउद्दीन ने सूखा या अकाल जैसी परिस्थितियों में rationing system को लागू किया। इसका मतलब था कि जब किसी क्षेत्र में खाद्यान्न की कमी होती तो शासन उन जरूरतमंद लोगों के लिए रेशन प्रदान करता था। इससे स्कैर्सिटी के समय में लोगों को आवश्यक सामान आसानी से मिल सके। रेवेन्यू रिफॉर्म्स। Alauddin made very effective reforms in the land revenue system. The land under cultivation was measured and land revenue was fixed on the basis of fertility of the land. Land tax was collected in both cash as well as kind. He also took steps to end corruption in the collection of land tax. Besides land revenue, grazing tax, chari, was introduced where people reared cattle to support their income. अलाउद्दीन ने लैंड रेवेन्यू सिस्टम में प्रभावी सुधार किए। उन्होंने लैंड अंडर कल्टीवेशन को मापने का काम शुरू किया और भूमि की उर्वरता के आधार पर लैंड रेवेन्यू निर्धारित किया। भूमि कर, टैक्स, दोनों कैश और काइंड में लिया जाता था। इसके अलावा उन्होंने भूमि कर के संग्रहण में करप्शन को समाप्त करने के लिए कदम उठाए। इसके अलावा ग्रेजिंग टैक्स, चरण कर, भी लागू किया गया, जिससे उन लोगों पर कर लगाया जाता था जो मवेशी पालते थे और उनसे अपनी आय प्राप्त करते थे। इस प्रकार अलाउद्दीन के राजस्व सुधारों ने इकोनॉमिक सिस्टम को और मजबूत किया और राज्य की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सुनिश्चित की। एंड ऑफ द खलजी डायनेस्टी। Alauddin died in 1316 AD. None of his heirs was powerful enough to control such a vast empire. Finally, in 1320 AD, a group of nobles led by Dazi Malik, the governor of Punjab, invaded Delhi and captured the throne. He held the title of Ghiyasuddin Tughlaq and founded Tughlaq dynasty. अलाउद्दीन 1316 में मृत्यु हो गई। उसके उत्तराधिकारी इतने सक्षम नहीं थे कि वे इतने बड़े साम्राज्य को नियंत्रित कर सकें। अंत में 1320 में पंजाब के गवर्नर हाजी मलिक के नेतृत्व में एक समूह ने दिल्ली पर आक्रमण किया और थ्रोन पर कब्जा कर लिया।
उसने घियासुरदीन तुगलक का खिताब लिया और तुगलक डायनेस्टी की नींव रखी। द तुगलक डायनेस्टी। The founder of the Tughlaq dynasty was Ghiyasuddin Tughlaq, who sat on the throne of Delhi in 1320 AD. He built a new city of Tughlaqabad near Delhi. He strengthened the defense of the northwestern frontier against the Mongol invaders. तुगलक डायनेस्टी की स्थापना घियासुरदीन तुगलक ने की थी, जिन्होंने 1320 में दिल्ली के थ्रोन पर बैठकर अपने साम्राज्य की नींव रखी। उसने दिल्ली के पास तुगलकाबाद नामक एक नई सिटी बनाई। साथ ही उसने मंगोल इन्वेडर्स के खिलाफ नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर की सुरक्षा को मजबूत किया। घियासुरदीन suppressed the rebels of Hindu chiefs of Deccan and Maharashtra. He invaded Bengal and occupied a large part of it. He met with his death either by conspiracy or by an accident. In 1325 AD, Juna Khan sat on the throne with the title of Muhammad bin Tughlaq. The famous rulers of this dynasty were Ghiyasuddin, Muhammad bin Firuz Shah Tughlaq. घियासुरदीन ने डेक्कन और महाराष्ट्र के हिंदू चीफ्स के विद्रोहियों को दबाया। उसने बंगाल पर आक्रमण किया और उसका बड़ा हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि उसकी मृत्यु एक साजिश या दुर्घटना के कारण हुई। 1325 में जूना खान ने मोहम्मद बिन तुगलक का टाइटल लेकर थ्रोन पर बैठा। इस डायनेस्टी के प्रसिद्ध शासक थे घियासुरदीन, मोहम्मद बिन फिरोज शाह तुगलक। Muhammad bin Tughlaq was one of the most efficient rulers of his time. But he was hasty and impatient. Therefore, many of his experiments failed. He has been named an ill-starred idealist by historians. The most controversial step he undertook was the transfer of the capital from Delhi to Devgiri. It appears that the Sultan wanted to make Devgiri's second capital because he felt he would be able to keep an eye over South India better from there. Devgiri, or Daulatabad, was more than 1500 kilometers away from Delhi. Only half of the people who started the journey could reach Daulatabad safely. मोहम्मद बिन तुगलक अपने समय के सबसे कुशल शासकों में से एक थे, लेकिन वह जल्दबाजी और अधीर थे, जिसके कारण उनके कई प्रयोग विफल हो गए। इतिहासकारों ने उन्हें इल-स्टार्ड आइडियलिस्ट कहा है। सबसे विवादास्पद कदम जो उन्होंने उठाया वह था राजधानी का दिल्ली से देवगिरी या दौलताबाद स्थानांतरण। ऐसा लगता है कि सुल्तान चाहता था कि देवगिरी को एक दूसरी कैपिटल बनाया जाए, क्योंकि उसे लगता था कि वह साउथ इंडिया पर बेहतर नजर रख सकेगा। लेकिन देवगिरी या दौलताबाद दिल्ली से 1500 किलोमीटर से भी अधिक दूर था। यात्रा पर निकले लोगों में से केवल आधे लोग ही सुरक्षित रूप से दौलताबाद पहुंच पाए। After some years, he decided to leave Daulatabad mainly because he noticed that just as he could not check the south from Delhi, so also he could not control the North India from Daulatabad. Another bold step which turned out to be great failure was the introduction of token currency. He decided to introduce a bronze coin due to scarcity of silver, which was to have the same value as the silver tanka. Thus, people amassed gold and silver coins and used only bronze or copper coins for trade. Hence, traders and common men did not accept it. People began forging the new coins, which thus became greatly devalued in the market. Finally, the Sultan had to withdraw the token currency.
Barney mentions that heaps of new coins remained lying outside the Tughlaqabad fort. Likewise, his attacks on Khurasan and Karachil were huge failures. कुछ वर्षों बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद छोड़ने का निर्णय लिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि जैसे वह दिल्ली से दक्षिण भारत पर नियंत्रण नहीं रख सकते थे, वैसे ही दौलताबाद से भी वह उत्तर भारत को नियंत्रित नहीं कर सकते थे। एक और साहसिक कदम जो कि बहुत बड़ी विफलता साबित हुआ, वह था टोकन करेंसी की शुरुआत। उन्होंने चांदी की कमी के कारण एक ब्रॉन्ज कॉइन पेश किया, जिसका मूल्य सिल्वर तनका के बराबर था। इसका परिणाम यह हुआ कि लोगों ने सोने और चांदी के सिक्के जमा कर लिए और केवल कांस्य या तांबे के सिक्कों का इस्तेमाल व्यापार के लिए किया। इस कारण व्यापारी और आम लोग इसे स्वीकार नहीं कर पाए। लोग नए सिक्कों की नकल करने लगे, जिससे ये सिक्के बाजार में काफी मूल्यहीन हो गए। अंत में सुल्तान को टोकन करेंसी को वापस लेना पड़ा। बर्नी ने उल्लेख किया है कि तुगलकाबाद फोर्ट के बाहर नए सिक्कों के ढेर पड़े थे। इसी तरह उनके खुरासान और कराचिल पर हमले भी बड़ी विफलताएं साबित हुए। Firuz Shah Tughlaq took keen interest in the economic progress of the country. He repaired and dug a number of canals and built several new towns. फिरोज शाह तुगलक ने देश की आर्थिक प्रगति में गहरी रुचि ली। उन्होंने कई नहरों की मरम्मत की और कई नए शहरों का निर्माण किया। तिमूर's invasion of India 1398 AD. Timur, Tamerlane, attacked India in 1398 when the Delhi Sultanate was on the verge of collapse. He crossed the plains of Punjab without any protest. The people ran for their lives, leaving their homes to be looted by the invaders. When the invaders reached the gates of Delhi, the Delhi Sultan Mahmud and his minister Malik Iqbal Khan offered a weak resistance. In the battle fought in 1398, Timur got a victory. After staying in Delhi for 15 days and amassing immense wealth, he moved back via Meerut, Haridwar, Kangra and Jammu, sacking and plundering towns. तिमूर, जिसे टैमरलेन भी कहा जाता है, ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया, जब दिल्ली सुल्तानेट लगभग टूटने की स्थिति में था। उसने पंजाब के मैदानी इलाकों को बिना किसी विरोध के पार किया। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे और अपने घरों को लूटने के लिए छोड़ रहे थे। जब आक्रमणकारी दिल्ली के दरवाजों तक पहुंचे, तो दिल्ली के सुल्तान महमूद और उनके मंत्री मलिक इकबाल खान ने कमजोर प्रतिरोध दिखाया। 1398 में हुई लड़ाई में तिमूर को जीत मिली। दिल्ली में 15 दिन रहने के बाद और अपार संपत्ति जमा करने के बाद वह मेरठ, हरिद्वार, कांगड़ा और जम्मू के रास्ते लौटे। इस दौरान उन्होंने कई शहरों को लूट लिया और नष्ट कर दिया। The Sayyid dynasty. Before leaving India, Timur had appointed Khizr Khan as the governor of Punjab. In 1414, Khizr Khan marched to Delhi and sat on the throne of the Delhi Sultanate. He founded the new dynasty known as the Sayyid Sultans of Delhi. There were 4 rulers in all. Khizr Khan 1414 से 1421 AD, मुबारक शाह 1421 से 1434 AD, मोहम्मद शाह 1434 से 1443 AD, and आलम शाह 1443 से 1450 AD. During the period of the Sayyids, Punjab was a disturbed area and there were frequent revolts at various places. भारत छोड़ने के बाद
तिमूर ने खिजर खान को पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया था। 1414 में खिजर खान दिल्ली की ओर बढ़े और दिल्ली सुल्तानत के सिंहासन पर बैठ गए। उन्होंने दिल्ली में एक नई सायद डायनेस्टी की नींव रखी। इस वंश के कुल 4 शासक हुए। खिजर खान 1414 से 1421 AD, मुबारक शाह 1421 से 1434 AD, मोहम्मद शाह 1434 से 1443 AD और आलम शाह 1443 से 1450 AD। सैयद काल के दौरान पंजाब एक अशांत क्षेत्र बना रहा और यहाँ कई स्थानों पर विद्रोह होते रहे। द लोडी डायनेस्टी। बहलोल लोडी 1451 से 1488 AD। The last ruler of the Sayyid dynasty Alam Shah was overthrown by Behlol Lodi, the governor of Lahore and Sirhind. He occupied Delhi and founded the new dynasty named as Lodi dynasty. सैयद डायनेस्टी के आखिरी शासक आलम शाह को हटा दिया और बहलोल लोडी, जो लाहौर और सरहिंद के गवर्नर थे, दिल्ली में सुल्तान बने। उन्होंने लोडी डायनेस्टी की नींव रखी। सिकंदर लोडी 1488 से 1517 AD। Sikandar Lodi was the most capable ruler of the Lodi dynasty. He tried to consolidate his power by bringing the provincial governors and chieftains under his control. He suppressed the prevailing disorder and, like Balban, attempted to restore the dignity of the court. The roads became safe for journey and trade again flourished. Abdullah, the author of Tarikh-i-Daudi, speaks highly of him. But in 1517, Sikandar fell ill and died. Sikandar Lodi 1488 से 1517 AD। सिकंदर लोडी लोडी वंश के सबसे सक्षम शासक थे। उन्होंने अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए प्रांतीय गवर्नरों और प्रमुखों को अपने नियंत्रण में लिया। उन्होंने मौजूदा अव्यवस्था को दबाया और बलबन की तरह दरबार की गरिमा को बहाल करने की कोशिश की। सड़कों को यात्रा के लिए सुरक्षित बनाया और व्यापार को पुनः प्रोत्साहित किया। अब्दुल्ला, तारीख-i-दौड़ी के लेखक ने उनकी प्रशंसा की। लेकिन 1517 में सिकंदर बीमार हो गए और निधन हो गया। इब्राहिम लोडी 1517 से 1526 AD। Sikandar Lodi was succeeded by Ibrahim Lodi. An arrogant ruler, he irritated the Afghan nobles by his harsh treatment and made them enemy. Daulat Khan Lodi, the governor of Punjab, turned against him and declared himself practically independent. He invited Zahiruddin Muhammad Babar, the king of Afghanistan, to invade India and overthrow Ibrahim Lodi. सिकंदर लोडी के बाद उनके पुत्र इब्राहिम लोडी ने सुल्तान की गद्दी संभाली। वह एक घमंडी शासक थे, जिन्होंने अफगान कुलीनों के साथ कड़े व्यवहार किए, जिससे वे उनसे नाराज हो गए। दौलत खान लोडी, जो पंजाब के गवर्नर थे, ने उनके खिलाफ विद्रोह किया और खुद को लगभग स्वतंत्र घोषित कर दिया। उन्होंने ज़ाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जो अफगानिस्तान के राजा थे, को भारत पर आक्रमण करने और इब्राहिम लोडी को उखाड़ फेंकने का निमंत्रण दिया। बाबर अटैक्ड 5 times on India during 1519 से 26 AD. During the 5th and final invasion, Babar defeated Daulat Khan Lodi. As Daulat Khan realized that Babar wished to conquer India for himself, so he turned against him. This compelled Babar to retire to Kabul. In November
1525, he moved from Kabul again with big army and captured Punjab. बाबर ने 1519 से 26 सदी के बीच भारत पर 5 बार आक्रमण किया। पांचवें और अंतिम आक्रमण में बाबर ने दौलत खान लोदी को हराया। जब दौलत खान को यह समझ में आ गया कि बाबर भारत को अपने कब्जे में लेना चाहता था, तो उसने अपनी तरफ से मोड़ लिया और बाबर के खिलाफ हो गया। इस कारण बाबर को काबुल वापस लौटना पड़ा। नवंबर 1525 में बाबर ने फिर से काबुल से बड़े सेना के साथ भारत की ओर कूच किया और पंजाब को जीत लिया। बाबर now moved towards Delhi and reached Panipat. Ibrahim Lodi also marched to take on the Mughal invader on the battlefield of Panipat in 1526 AD. Although Babar's army was much smaller in number, it had fine artillery. Ibrahim Lodi died on the battlefield along with 15 to 16,000 soldiers. Babar won a decisive victory. The Battle of Panipat decided not only the fate of Punjab but also that of India. The Sultanate rule came to an end and Babar laid the foundations of the Mughal Empire in India. इसके बाद बाबर ने दिल्ली की ओर बढ़ते हुए पानीपत तक यात्रा की। इब्राहिम लोदी भी बाबर के खिलाफ युद्ध करने के लिए पानीपत के मैदान पर पहुंचे। हालांकि बाबर की सेना संख्या में बहुत कम थी, लेकिन उनके पास बेहतरीन आर्टिलरी थी। इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में मारे गए और साथ ही 15 से 16,000 सिपाही भी मारे गए। बाबर ने निर्णायक विजय प्राप्त की। पानीपत की लड़ाई ने न केवल पंजाब बल्कि इंडिया का भविष्य बदल दिया। सुल्तानेट शासन का अंत हुआ और बाबर ने भारत में मुगल एम्पायर की नींव रखी। लाइफ एंड कल्चर अंडर द दिल्ली सुल्तानेट। The rule of the Sultanate of Delhi, extending over a period of 5 centuries, had a great impact on the social, economic, religious and cultural life of the people of India. This period of Indian history had many features which were quite different from those of ancient India. दिल्ली सुल्तानेट का शासन लगभग 5 शताब्दियों तक चला और इसने भारत के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। इस काल में भारतीय इतिहास की कई ऐसी विशेषताएं थीं जो प्राचीन भारत से पूरी तरह अलग थी। Social life. Indian society during the medieval period was mainly distributed into 4 major classes or groups: the aristocracy, the priests, the town people and the village people or peasants. मध्ययुगीन काल के दौरान भारतीय समाज मुख्य रूप से 4 प्रमुख वर्गों या समूहों में विभाजित था: अभिजात वर्ग, पुजारी, शहर के लोग और गांव के लोग या किसान। The upper class or aristocracy comprised the ruling class. It included the Sultan, the nobles, the landlords and Hindu kings or princes. उच्च वर्ग या अभिजात वर्ग में शासक वर्ग शामिल था। इसमें सुल्तान, रईस, जमींदार और हिंदू राजा या राजकुमार शामिल थे। The second class included the priests or the ulemas, the Maulvis, the Dhazis, the Brahmins or the Pandits. They advised the rulers on the matters of administration in accordance with the sacred laws. This priestly class received land grants from the rulers for their living. Common people also offered them gifts and donations. दूसरे वर्ग में priests, पुजारी, ulemas, ulema, Maulvis, मौलवी, धाजीस, काजी, ब्राह्मण्स, ब्राह्मण और पंडित्स, पंडित शामिल थे। ये लोग शासकों को एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन,
के मामलों में सलाह देते थे और अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन करते थे। इनका मुख्य काम धार्मिक कानूनों के अनुसार शासन को मार्गदर्शन देना था। लैंड ग्रांट्स, भूमि अनुदान के रूप में इन्हें शासकों से सहायता मिलती थी। आम लोग भी इन्हें गिफ्ट्स, उपहार और डोनेशंस, दान देते थे। The people in towns formed the third section of society. They included shopkeepers, merchants, traders, etc. शहर वाले, टाउन पीपल, समाज के तीसरे वर्ग में आते थे। इसमें शॉपकीपर्स, दुकानदार, मर्चेंट्स, व्यापारी, ट्रेडर्स, साहूकार और अन्य व्यावसायिक लोग शामिल थे। ये लोग सिटीज, शहरों में रहते थे और व्यापार, निर्माण और छोटे उद्योगों से जुड़े होते थे। Most of the farmers and peasants formed the fourth and lowest section of society. They mostly paid land revenue and other taxes but led miserable life. किसान और मजदूर, farmers and peasants, समाज का चौथा और सबसे निचला वर्ग थे। ये लोग मुख्य रूप से लैंड रेवेन्यू, भूमि कर और अन्य टैक्सेस, करों का भुगतान करते थे। इनका जीवन अधिकतर कठिन और गरीबी में बीतता था। वे खेतों में काम करते थे और अक्सर शासकों द्वारा लगाए गए भारी करों के कारण मिजरेबल, दुखी जीवन जीते थे। इस तरह मध्यकालीन भारत में समाज में विभिन्न वर्गों की अपनी भूमिका थी और उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति एक दूसरे से बहुत अलग थी। इकोनॉमिक लाइफ। Just like the ancient period, agriculture was the main occupation of the masses in medieval India. Firuz Shah Tughlaq took some steps to promote agriculture. He built 5 canals and dug a large number of wells. His irrigation works proved boon for the farmers. The state also gave loans to the farmers in times of drought and famine. प्राचीन काल की तरह मध्यकालीन भारत में भी कृषि, एग्रीकल्चर, जनसामान्य का मुख्य व्यवसाय था। फिरोज शाह तुगलक ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए। उसने 5 नहरें, 5 कैनाल्स बनवाईं और बड़ी संख्या में कुएं, वेल्स खुदवाए। उसके सिंचाई, इरिगेशन कार्य किसानों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुए। इसके अलावा राज्य ने सूखा, ड्राउट और अकाल, फमाइन के समय में किसानों को लोन्स भी दिया। इस प्रकार राज्य ने किसानों के उत्थान के लिए कई प्रावधान किए ताकि कृषि क्षेत्र मजबूत रहे और किसानों को राहत मिले। India had trade relations with Central and Western Asia. It was mostly in the hands of Multani Hindu traders. India also had trade relations with the Srivijaya Empire, China, East Africa and Arabia. भारत के व्यापारिक संबंध, ट्रेड रिलेशंस, केंद्रीय और पश्चिमी एशिया, सेंट्रल एंड वेस्टर्न एशिया से थे। यह व्यापार मुख्य रूप से मुल्तानी हिंदू व्यापारियों, मल्टोनी हिंदू ट्रेडर्स के हाथों में था। भारत के व्यापारिक संबंध श्रीविजय साम्राज्य, चीन, पूर्वी अफ्रीका और अरेबिया से भी थे। The Srivijaya Empire flourished between the 7th and 13th centuries AD. This maritime and commercial kingdom in the Malay archipelago, a group of islands, originated on the island of Sumatra and soon came to control the Strait of Malacca. It controlled international sea trade and had relations with other islands and with China and India. It was also center for Mahayana Buddhism and stopping place for Chinese pilgrims visiting to India. श्रीविजय साम्राज्य, श्रीविजया एम्पायर, जो 7वीं से 13वीं सदी तक फलफूल रहा था,
एक समुद्री और वाणिज्यिक साम्राज्य था जो मलय द्वीपसमूह मलय आर्किपेलागो में स्थित था। यह साम्राज्य सुमात्रा द्वीप पर उत्पन्न हुआ और जल्द ही उसने मलक्का जलसंधि स्ट्रेट ऑफ मलाक्का को नियंत्रित कर लिया। इसने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार इंटरनेशनल सी ट्रेड को नियंत्रित किया और चीन तथा भारत से व्यापारिक संबंध बनाए रखे। साथ ही यह महायान बौद्ध धर्म महायाना बुद्धिज्म का केंद्र भी था और चीन से भारत यात्रा करने वाले यात्री पिलग्रिम्स के लिए एक प्रमुख ठहराव स्थल स्टॉपिंग प्लेस था। इन नॉर्दर्न इंडिया, Delhi was a great center of trade. It was the market for the sale and purchase of goods like rice, sugar, wheat, fine silk, cotton textiles, metalwares, handicrafts, ivory, etc. The necessities of life seemed to be cheaper during the reign of Alauddin Khalji due to his economic reforms and market regulation. उत्तर भारत, नॉर्दर्न इंडिया में दिल्ली एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र सेंटर ऑफ ट्रेड था। यहाँ चाल, चीनी, गेहूं, रेशमी कपड़ा, सूती वस्त्र, धातु के सामान, हस्तशिल्प, हाथी दान जैसे सामानों की खरीद बिक्री सेल एंड परचेज होती थी। अलाउद्दीन खलजी के शासन के दौरान जीवन की जरूरतों की चीजें सस्ती प्रतीत होती थी क्योंकि उन्होंने आर्थिक सुधार, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और बाजार नियमन मार्केट रेगुलेशन लागू किए थे। फिरोज शाह तुगलक abolished many improper taxes. This resulted in the growth of trade. Sikandar Lodi also introduced economic reforms that encouraged trade and industry. फिरोज शाह तुगलक ने कई अनावश्यक कर improper taxes समाप्त किए, जिसके कारण व्यापार ट्रेड में वृद्धि हुई। सिकंदर लोडी ने भी ऐसे आर्थिक सुधार इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लागू किए जिन्होंने व्यापार और उद्योग को बढ़ावा दिया। Despite all this, the people had to bear the cost of the huge army kept by the sultans. Besides this, foreign invasions and internal revolts also hampered the growth of trade and agriculture at times. हालांकि इसके बावजूद लोगों को सुल्तानियों द्वारा रखे गए विशाल सेना ह्यूज आर्मी का खर्च उठाना पड़ता था। इसके अलावा विदेशी आक्रमण फॉरेन इन्वेशंस और आंतरिक विद्रोह इंटरनल रिवोल्ट्स भी व्यापार और कृषि के विकास में रुकावट डालते थे। आर्ट एंड आर्किटेक्चर Though the sultans of Delhi were not as magnificent builders as Mughal rulers, they took a fair amount of interest in architecture. They founded new cities, built palaces, rest houses, bridges, mosques and tombs. हालांकि दिल्ली के सुल्तान मुगल शासकों की तरह शानदार निर्माण करता नहीं थे, फिर भी उन्होंने वास्तुकला में अच्छा खासा रुचि दिखाई। उन्होंने नई शहरों सिटीज की स्थापना की, महलों पैलेसेस, विश्राम गृहों रेस्ट हाउसेस, पुलों ब्रिजेस, मस्जिदों मॉस्क्स और मकबरों टूम्स का निर्माण किया। Alauddin Khalji built the city of Siri and Ghiyasuddin Tughlaq built the city of Tughlaqabad. Firuz Shah Tughlaq built the cities of Hisar, Firoza and Jaunpur. Alauddin Khalji ने सीरी शहर की स्थापना की और गियासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद शहर बनाया। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार, फिरोजा और जौनपुर शहरों का निर्माण किया।
The famous Adina Masjid at Paduya, built by Sikandar Shah, was one of the largest mosques in the Muslim world. The Jama Masjid at Ahmedabad and Mahmud Begada's mosque at Champena are beautiful and lofty structures. सिकंदर शाह द्वारा पडुया में बनाई गई प्रसिद्ध अदीना मस्जिद, जो कि मुस्लिम दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक मानी जाती है। जामा मस्जिद अहमदाबाद और महमूद बेगड़ा की मस्जिद चंपानेर शैम्पेना में सुंदर और ऊंची संरचनाएं हैं। The Quwwatul Islam Mosque, built by Qutubuddin Aibak, is a fine example of the Indo-Muslim style of architecture. The Adhai Din Ka Jhompada Mosque at Ajmer was built by Qutubuddin Aibak, but was expanded by Iltutmish. Quwwatul Islam Mosque, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया, यह इंडो-मुस्लिम वास्तुकला, इंडो-मुस्लिम आर्किटेक्चर की एक बेहतरीन मिसाल है। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा मॉस्क अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाई गई थी, लेकिन इसे इल्तुतमिश ने विस्तार दिया। Qutubuddin Aibak also started the construction of the Qutub Minar in Delhi, but it was finally finished by Iltutmish. This magnificent minar was originally 225 feet high and had 4 stories. कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण दिल्ली में शुरू किया, लेकिन यह मीनार अंततः इल्तुतमिश द्वारा पूरा किया गया। यह भव्य मीनार मूलतः 225 फीट ऊंची थी और इसमें 4 मंजिलें थी। Firuz Shah Tughlaq was the most magnificent builder of all the Tughlaq rulers. The greatest monuments of his reign are Firuz Shah Kotla, Kali Masjid, Lal Gumbaj and his own mausoleum. The most important monument of the Lodi dynasty is the Maut Ki Masjid built by Sikandar Lodi. Firuz Shah Tughlaq तुगलक शासकों में सबसे शानदार निर्माणकर्ता थे। उनके शासनकाल के सबसे महान स्मारक हैं फिरोज शाह कोटला, काली मस्जिद, लाल गुंबज और उनका खुद का मकबरा मौज़ोलियम। लोडी डायनेस्टी का सबसे महत्वपूर्ण स्मारक मौत की मस्जिद है, जिसे सिकंदर लोडी ने बनवाया। लैंग्वेज एंड लिटरेचर। The Delhi Sultans encouraged the study of Persian, the language spoken mostly by the rulers, nobility and the ulema. Sanskrit was the classical language of the Hindus but was spoken only by highly learned Hindus. The Bhakti movement led to the growth of various regional languages such as Marathi, Gujarati, Hindi, Punjabi, Bengali, Kannada, Tamil and Telugu. Many Sanskrit books were translated into other Indian languages. दिल्ली सुल्तान ने फारसी, पर्शियन भाषा के अध्ययन को बढ़ावा दिया क्योंकि यह मुख्य रूप से शासकों और नोबिलिटी द्वारा बोली जाती थी। संस्कृत, जो हिंदुओं की क्लासिकल लैंग्वेज थी, सिर्फ हाईली लर्न्ड हिंदूज द्वारा बोली जाती थी। भक्ति आंदोलन, भक्ति मूवमेंट ने कई रीजनल लैंग्वेजेस को जन्म दिया जैसे मराठी, गुजराती, हिंदी, पंजाबी, बंगाली, कन्नड़ा, तमिल और तेलुगु। कई संस्कृत टेक्स्ट को अन्य भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया। Persian, being the court language, was important for both the Muslims and the Hindus. Both the communities contributed to the growth of Persian language. Amir Khusro, nicknamed the Parrot of India,
belonged to this period. He was a famous author and poet who wrote in Persian, Hindi and Urdu. Besides, famous historians like Minhajul Siraj and Ziauddin Barni and traveler Ibn Battuta used Persian to write their accounts about rulers, political events and the lives of the common people. पर्शियन भाषा, जो कोर्ट लैंग्वेज थी, दोनों मुस्लिम्स और हिंदूस के लिए महत्वपूर्ण थी। दोनों समुदायों ने फारसी भाषा के विकास में योगदान दिया। आमिर खुसरो, जिन्हें पैरेट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, इस समय के प्रसिद्ध लेखक और कवि थे। उन्होंने पर्शियन, हिंदी और उर्दू में लिखा। इसके अतिरिक्त प्रसिद्ध हिस्टोरियंस जैसे मिन्हाजुल सिरज और जियाउद्दीन बर्नी और यात्री आईबीएन बतूता ने फारसी का उपयोग किया और अपने लेखों में शासकों, राजनीतिक घटनाओं और आम लोगों के जीवन को लिखा। Urdu, a new hybrid language, also originated during this era. It was simple language, understandable by both the Turks and the Indians. The origin of Punjabi literature is also traced from this period. Baba Sheikh Farid sang both in Punjabi and Persian. He was the first Sufi poet who used standard literary Punjabi. Urdu एक नई हाइब्रिड लैंग्वेज थी जो इस युग में उत्पन्न हुई। यह एक सरल भाषा थी जिसे टर्क्स और इंडियंस दोनों आसानी से समझ सकते थे। पंजाबी लिटरेचर की उत्पत्ति भी इस समय से जुड़ी है। बाबा शेख फरीद ने पंजाबी और पर्शियन दोनों में गाया। वह पहले सूफी पोएट थे जिन्होंने स्टैंडर्ड लिटरेरी पंजाबी का उपयोग किया। The Vijayanagar rulers patronized Sanskrit. The famous Sanskrit scholars of this period were Ramanuj, Sarthi Mishra and Jayadev. The Delhi Sultanate rulers got many Sanskrit works translated into Persian and Arabic. विजयनगर के शासकों ने संस्कृत का समर्थन किया। इस काल के प्रसिद्ध संस्कृत स्कॉलर्स में रामानुज, सारथी मिश्रा और जयदेव शामिल थे। दिल्ली सुल्तानेट के शासकों ने कई संस्कृत वर्क्स को पर्शियन और अरबिक में अनुवाद करवाया। Delhi Sultanate and their administration. The rulers of the Delhi Sultanate were autocrats and enjoyed enormous powers. The Sultan's word was law. He could appoint any person to any post and dismiss him according to his will. He governed with the help of some advisors and ministers. The Sultan was expected to follow the rules based on the Quran and Islamic traditions. Delhi Sultanate के शासक ऑटोक्रेट्स थे और उनके पास विशाल शक्तियाँ थी। सुल्तान का शब्द कानून माना जाता था। वह किसी भी व्यक्ति को किसी भी पद पर नियुक्त कर सकते थे और अपनी इच्छा से उसे हटा सकते थे। वह कुछ एडवाइजर्स और मिनिस्टर्स की मदद से शासन करते थे। सुल्तान को कुरान और इस्लामिक ट्रेडिशंस के अनुसार नियमों का पालन करने की उम्मीद थी। The Dhazi and the ulema had a great impact on the administration. But sultans like Balban, Alauddin Khalji and Muhammad bin Tughlaq did not give much importance to them. The power of the Delhi sultans depended on their army. They maintained their power by the sword. War booty was one of the main sources of income for these sultans. धाजी और उलेमा का प्रशासन पर बड़ा प्रभाव था, लेकिन शासक जैसे बलबन, आलौद्दीन खलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने उन्हें ज्यादा महत्व नहीं दिया। दिल्ली के सुल्तान का शक्ति उनके आर्मी पर निर्भर थी। उन्होंने अपनी शक्ति को स्वॉर्ड के द्वारा बनाए रखा। वॉर बूटी उनके लिए आय का मुख्य स्रोत था।
The most important among Sultan's ministers were the Wazir or the revenue minister and the Mir Bakshi or the paymaster of the army. The minister in charge of the military organization was called Diwan-i-Aris. The Diwan-i-Risalat was the minister of religious affairs. सुल्तान के सबसे महत्वपूर्ण मंत्रियों में वजीर या रेवेन्यू मिनिस्टर और मीर बख्शी या पेमास्टर ऑफ द आर्मी शामिल थे। जो मंत्री सैन्य संगठन के प्रभारी होते थे उन्हें दीवान-ए-आरिस कहा जाता था। दीवान-ए-रिसालत धार्मिक मामलों के मंत्री थे। The empire was divided into provinces, subas. The subas were divided into shiks and shiks into parganas. These parganas consisted of some villages. The governor of a province was called the wali, mukti or subedar. The main duty of the governor was to maintain law and order in the province. Empire को provinces, जिसे सुबास कहा जाता था, में बांटा गया था। ये सुबास फिर शिक्स में बांटे जाते थे और शिक्स को परगानस में विभाजित किया जाता था। इन परगानस में कुछ विलेजेस होते थे। एक प्रोविंस के गवर्नर को वाली, मुक्ति या सूबेदार कहा जाता था। गवर्नर का मुख्य कर्तव्य था लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना। The village was the primary unit of local administration. A group of villages was called a pargana. The chief officer of the pargana was called the amil, who was responsible for the collection of land revenue. The village headman was called muqaddam or chaudhry. The kotwal was the head of the police department of the town. Criminals were given severe punishments during the rule of the Delhi Sultans. गांव स्थानीय प्रशासन की प्राइमरी यूनिट था। कई गांवों के समूह को परगना कहा जाता था। परगना के प्रमुख अधिकारी को आमिल कहा जाता था, जो लैंड रेवेन्यू, भूमि कर का संग्रह करने के लिए जिम्मेदार होते थे। विलेज हेडमैन को मुकद्दम या चौधरी कहा जाता था। कोतवाल शहर के पुलिस डिपार्टमेंट के प्रमुख होते थे। क्रिमिनल्स, अपराधियों को दिल्ली सुल्तानत के शासन में कड़ी सजा दी जाती थी। इक्ता सिस्टम। The term ikta means the land or land revenue assigned to an individual on behalf of the ruler. In the beginning, the Turkish administration was essentially military. The sultans divided the empire into a number of tracts called iktas, which were assigned to the military leaders. The holder of an ikta was called iktadar, but he did not own the land. He maintained law and order in the ikta and collected the land revenue due to the state. Out of the land revenue thus collected, the iktadar met the cost of administration. He was allowed a part of the income for his own use. He sent the balance, if any, to the state treasury. There were three important taxes. First, on cultivation called kharaj, half of the produce. Second, on cattle and third on houses. इक्ता सिस्टम में इक्ता का अर्थ है उस भूमि या भूमि कर को किसी व्यक्ति को शासक की ओर से सौंपा जाना। शुरुआत में तुर्की प्रशासन मिलिट्री, सैन्य आधारित था। सुल्तान ने साम्राज्य को कई ट्रैक्ट्स, इलाकों में बांटा, जिन्हें इक्तास कहा जाता था, और इनका वितरण सैन्य नेताओं को किया गया। इक्ता का मालिक इक्तादार होता था, लेकिन उसके पास भूमि का स्वामित्व नहीं होता था। इक्तादार अपने इक्ता में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार था और राज्य के लिए भूमि कर एकत्र करता था। इस एकत्रित कर से इक्तादार प्रशासन का खर्च पूरा करता था और अपनी आवश्यकताओं के लिए आय का एक हिस्सा रखता था। शेष धन को वह राज्य के खजाने में भेजता था।
तीन प्रमुख कर थे। पहला, कृषि पर खराज, उत्पाद का आधा हिस्सा। दूसरा, मवेशियों पर। और तीसरा, घरों पर। द नोबिलिटी एंड द कोर्ट्स। The sultans and nobles enjoyed high standard of living. Most of them came from the Turkish and Afghan families that settled in India. The nobles were very powerful during the Sultanate period. Sometimes, they even influenced state policies. The Sultan occupied the most important place. He was the center of all political, जुडिशियल एंड मिलिट्री पावर। सुल्तान और उनके नोबल्स बहुत ही उच्च जीवन स्तर का अनुभव करते थे। इनमें से अधिकतर तुर्की और अफगान परिवारों से थे। नोबल्स की शक्ति बहुत अधिक थी और कई बार स्टेट पॉलिसीज को प्रभावित करते थे। सुल्तान का स्थान सबसे महत्वपूर्ण था क्योंकि वह सभी पॉलिटिकल, जुडिशियल, मिलिट्री पावर का केंद्र था। Like most Hindu rulers, every sultan in the Sultanate period built his own palace. Sultan Balban had a dazzling court and protocols which were designed to impress visitors. The Khalji sultans followed the same tradition. जैसे अधिकांश हिंदू शासक महल बनवाते थे, वैसे ही सुल्तान ने भी अपना महल बनवाया। सुल्तान बलबन ने एक शानदार अदालत और प्रोटोकॉल स्थापित किए थे, जो आगंतुकों पर प्रभाव डालने के लिए बनाए गए थे। खलजी सुल्तान्स ने भी इसी परंपरा को अपनाया। मोहम्मद बिन तुगलक, in fact, took this convention to new heights. Ibn Battuta described how a person who wanted to visit the Sultan had to pass through 3 lofty, heavily guarded gates. He then entered the Court of Thousand Pillars, which was a vast hall and decorated with costly things. This was the place where the Sultan held his public court. The Sultan's birthday and the Nowruz, the Persian New Year, were both celebrated with great pomp and show. The court was a hotbed of political conspiracies, backstabbing diplomacy. मोहम्मद बिन तुगलक ने इस परंपरा को नए ऊंचाई पर पहुंचाया। आईबीएन बतूता ने वर्णन किया कि जब कोई व्यक्ति सुल्तान से मिलने जाता था, तो उसे पहले 3 मजबूत और भारी सुरक्षा वाले दरवाजों से गुजरना पड़ता था। उसके बाद वह कोर्ट ऑफ 1000 पिलर्स में प्रवेश करता था, जो एक विशाल हॉल था और महंगी चीजों से सजा हुआ था। यहाँ पर सुल्तान अपनी सार्वजनिक अदालत लगाता था। सुल्तान्स बर्थडे और नौरोज, पारसी नववर्ष, को बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। यहाँ पर अक्सर राजनीतिक साजिशें और धोखाधड़ी की राजनीति होती थी। The nobles tried to copy the elegant living of the sultans. They lived in magnificent palaces, wore costly clothes and were surrounded by a large number of servants, slaves and retainers. Nobles ने सुल्तान के जीवन का अनुकरण करने की कोशिश की। वे भव्य महलों में रहते थे, महंगे कपड़े पहनते थे और उनके चारों ओर बहुत सारे सेवक, दास और नौकर होते थे। The sultans continued to grant land or villages to an officer in lieu of paying him salary. The grant was not hereditary and could be transferred. But when the central authority became weak, the grant usually came to be regarded as hereditary. Although Alauddin Khalji repressed the ostentatious living of the nobles, yet during Tughlaq's period, a number of nobles were able to amass wealth. These sultans and the nobles built gardens, orchards, markets, etc. सुल्तान्स ने लैंड या विलेजेस ऑफिसर्स को सैलरी के बदले में दी। यह ग्रांट इनिशियली हेरेडिटरी नहीं थी और इसे ट्रांसफर किया जा सकता था।
लेकिन जैसे जैसे सेंट्रल अथॉरिटी कमजोर हुई, ये ग्रैंड हेरेडिटरी बन गई। अलाउद्दीन खिलजी ने नोबल्स के लाविश जीवन को रोका, लेकिन तुगलक पीरियड में कई नोबल्स ने वेल्थ इकट्ठा की। दे बिल्ट गार्डन्स, ऑर्चर्ड्स एंड मार्केट्स। Thus, during the Sultanate period, a new class of landed gentry came up. The breakup of the Delhi Sultanate towards the beginning of the 15th century brought this trend to a halt. Thus, Sultanate period में एक नई क्लास ऑफ लैंडेड जेंट्री बनी। मगर 15th सेंचुरी में दिल्ली सुल्तानेट के टूटने के बाद यह ट्रेंड रुक गया।